Hello dear MSc Microbiology students, welcome to the another video lecture of your MBTE23, that is the nitrogen metabolism, respiration and photosynthesis. We have already started with the chapter. We have almost completed the few important points in the syllabus, and in the last lecture we have seen about the nitrogenase enzyme and its regulation. Okay, and now here on we will see the one more important factor or one more important point of the syllabus, that is the assimilation of the ammonia. Okay, so let us just rewind quickly what exactly the points which are related with the assimilation. Okay, so when we have seen that since we as a eukaryotes or even plants, okay, they are not able to synthesize the or fix the atmospheric nitrogen. Okay, we need nitrogen, we need the compounds which has nitrogen, but we don't have any sort of ability that may help us to fix the atmospheric nitrogen directly. Okay, we have seen all about it. We have learned that plants also need kind of a help for the fixation of atmospheric nitrogen. Though abundance of nitrogen is present in the atmosphere, we have lots and lots of nitrogen, but still we can't use it properly. Okay, for that thing of matter we need kind of a help. We, in the sense I am talking about the plants need some kind of help which will make them utilize that atmospheric nitrogen into the different components, and after the plants utilize them and convert into different factors, we as the animals take the nutrients, take the components from them ready made. Okay, then the thing is that for the fixation of the atmospheric nitrogen, they sort of need some kind of a mechanism. Okay, amongst them we have seen that nitrogenase enzyme is the one of the important factor, that is the not one of the, I would say the most important factor that is required for the fixation of atmospheric nitrogen. So now it was all basic. Okay, it was all basic that how the plants fix the nitrogen, what are the mechanisms through which they fix the nitrogen. Now we are moving a bit ahead of it. Now we will see what are the components, what are the things that are being formed by using such kinds of mechanisms. Now if we overlook the things that happen in this event, so nitrogen, first of all atmospheric nitrogen is taken. Okay, it has been converted into some kind of forms, and then finally the ammonia is formed. Okay, the ammonia is the main product, or we can say final product of this whole process. But we can't take ammonia. Ammonia is not at all good for us, so that this ammonia is being converted into the usable components. It may be ammonia may be converted into the amino acids, it may be converted into proteins, or it may be converted into any other components that are being utilized by our body. Okay, सो इस अमोनिया का मतलब यहाँ से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से लेके जो नाइट्रोजन का सफ़र है टिल दी अमोनिया टिल दी अमाइनो एसिड, ये कैसे होता है, इसको हम पूरा बोलते हैं असिमिलेशन ऑफ द नाइट्रोजन. इस होल प्रोसीजर को हम बोलते हैं असिमिलेशन ऑफ द नाइट्रोजन. नाइट्रोजन का जैसे हमने डिस्कस भी किया था कि वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में जो है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, उसको पहले फिक्स करना पड़ता है. फिक्स करने के बाद उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है. अब अमोनिया भी हमारे लिए इतना अच्छा नहीं है, ना ही प्लांट्स के लिए है. आपने भी सुना होगा अमोनिया इज़ हाईली टॉक्सिक. ठीक है, फॉर दैट थिंग ऑफ मैटर अमोनिया को ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टोर करके नहीं रखा जाता है, तो इसका इमीडिएट कन्वर्जन किया जाता है इनटू डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक सम काइंड ऑफ द प्राइमरी अमाइनो एसिड, जिससे फिर मेन अमाइनो एसिड बनते हैं या फिर प्रोटीन्स बनते हैं. तो ऐसे यूजेबल प्रोडक्ट्स में उसको कन्वर्ट करके फिर स्टोर किया जाता है. इट इज़ नॉट ईजी कि वो डायरेक्टली जो प्लांट्स भी हो या फिर हम भी हो कि अमोनिया अपने आप में स्टोर कर ले, नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो बहुत टॉक्सिक कंपोनेंट है. तो इसके लिए अमोनिया का जो है असिमिलेशन किया जाता है इनटू द डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स, और वो स्टोर किया जाता है इनटू द प्लांट बॉडी. नाउ थिंग इज़ दैट क्यों ऐसा क्यों है, तो अमोनिया जो होता है इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक कंपोनेंट्स, उनसे प्लांट की नॉर्मल मेटाबॉलिज्म भी अफेक्ट होती है. पहली चीज़ तो ये है कि वो कार्सिनोजेनिक है. दूसरी चीज़ ये है कि प्लांट जो होते हैं नाइट्रेट्स को या फिर अमोनिया को
नाइट्रेट्स को या फिर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ट्रांसलोकेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अमोनिया को नहीं कर सकते। अमोनिया की बहुत एक लेवल तक ठीक है वो टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन बहुत देर तक उनको रखना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो क्या करता है फिर इंटरफेरेंस करने लगता है, फोटोसिंथेसिस में इंटरफेरेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इंटरफेरेंस करेगा। तो ये सब चीज़ें ना हो इसके लिए अमोनिया का असिमिलेशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। असिमिलेशन होना मतलब क्या, उसका यूजेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना, ठीक है। तो ये चीज़ होने के लिए अब कोई भी प्रोसेस, अगर हम बायोकेमिस्ट्री की बात करें तो कोई भी प्रोसेस होने के लिए कुछ चीज़ें लगती है, और उन चीज़ों में पहला इम्पॉर्टेंट थिंग है एंजाइम। अब वो कौन सी एंजाइम्स लगती है, कैसे प्रोसीजर्स लगते हैं, हम वो यही डिटेल में देखने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया, नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म होना मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, नाइट्रेट से नाइट्राइट का, नाइट्राइट से अमोनियम का, और अमोनियम का अमाइनो एसिड जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, ठीक है, स्टार प्रोडक्ट आई वुड से, इस प्रोडक्ट तक बनना इज होल प्रोसीजर इज नोन एज द नाइट्रोजन असिमिलेशन। इस चीज़ को होने के लिए कुछ चीज़ें लगती है। पहली चीज़ तो एनर्जी बहुत सारी लगती है, ठीक है। अब अमोनिया एसिड जो अमाइनो एसिड है वो बनने हैं तो वो इससे सीधे सीधे नहीं बनते। ये जो आपको बीच में ये जो 3 तिगड़ा दिख रहा है वो बहुत टॉक्सिक होता है, इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द प्लांट्स और एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जो 3 तिगाड़ा है वो भी बनता है बीच में, और इसको भी जल्दी से जल्दी अमोनिया एसिड अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करना इज़ ए इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। देन इसके अलावा इसके अलावा जो तीसरी चीज़ ये है कि उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ लगती है वो है एंजाइम्स। बहुत सारी एंजाइम्स भी लगती है। अब इस होल प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन असिमिलेशन। मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सीधा आएगा और अमोनियम या फिर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा क्या, नहीं। सीरीज ऑफ रिएक्शंस होगी, सीरीज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, सीरीज ऑफ सबस्ट्रेट्स लगेंगे, तब जाके कहीं पे अमाइनो एसिड बनेंगे। वही हम देखेंगे कि ये अमोनिया जो होता है, बनता है अमोनिया, उसका कन्वर्जन अमाइनो एसिड में क्यों होता है और कैसे होता है, ठीक है। नाउ जो नाइट्रोजन असिमिलेशन होता है, पहली चीज़ तो ये, पहले उसका कन्वर्जन होगा नाइट्रेट में, उसके बाद उसका नाइट्राइट में, नाइट्राइट एंड नाइट्रेट में, एंड उसके बाद उसका कन्वर्जन होगा इनटू द अमोनिया। आपके सिलेबस में आपको दिया गया है अमोनिया का कैसे असिमिलेशन होता है, मतलब आपको नाइट्रेट का इतना ध्यान रखने की या फिर इतना उस पर जोर देने की ज़रूरत नहीं है। द मेन फोकस हियर इज़ ऑन दी अमोनियम असिमिलेशन, ओके, असिमिलेशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया का कैसे असिमिलेशन होता है, यही आपको चीज़ याद रखनी है। खाली 3 एंजाइम्स लगती है, वो एंजाइम कौन सी होती है वो देखनी है, और वो क्या रोल प्ले करती है हमें देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट आपके जनरल नॉलेज के लिए बताती हूँ, नाइट्राइट जो होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से जो नाइट्राइट बनते हैं, उसमें से जो नाइट्राइट होते हैं दैट इज़ NO2, वो भी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का, तो नाइट्रोजन असिमिलेशन का। तो इसका जो है कन्वर्जन होना इनटू द अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी बहुत रिएक्टिव और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो ये करने के लिए हमारे जो मेन हीरो है वो है नाइट्रेट रिडक्टेज। नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है नाइट्राइट दैट इज़ NO2, इसका कन्वर्जन करेंगे इनटू द अमोनिया। अब ऐसे खाली पीली होगा नहीं है, तो वहाँ पे आपको लगेगी एक एंजाइम दैट इज़ द नाइट्राइट रिडक्टेज। वो क्या करेगा, फेरोडॉक्सिन से हाइड्रोजन आइटम्स, फेरोडॉक्सिन को रिड्यूस करके इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इलेक्ट्रॉन्स लेके उससे नाइट्रेट का कन्वर्जन करेगा इनटू दी अमोनिया, ओके। यहाँ पे रिडक्शन प्रोसीजर होती है, तो यहाँ पे नाइट्रेट का कन्वर्जन O2 रिमूव होके H4 ऐड होना इज द रिडक्शन होगा यहाँ पे नाइट्राइट का इनटू दी अमोनिया, ठीक है। ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए। नाउ हमारी जो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी वो है अमोनिया का कैसे असिमिलेशन होता है। तो एज आई टोल्ड यू कि प्लांट सेल जो होती है वो ज़्यादातर नहीं रख पाती अपने अंदर वो अमोनिया, क्योंकि वो हाईली टॉक्सिक है। उसको रिमूव तो नहीं करना है, उसका एक अच्छे से फॉर्म में यूटिलाइजेशन करना है, ताकि फिर वो बॉडी में भी रह जाए, उसका वेस्ट भी ना हो
और टॉक्सिसिटी भी ना हो, ठीक है। तो उसका बैलेंस करने के लिए, उसको अच्छे से बॉडी में रखने के लिए अमोनियम असिमिलेशन किया जाता है, ठीक है। तो प्लांट्स में जो होता है, आई विल शो यू, आपको अमोनियम असिमिलेशन मतलब याद रखना है कि अमोनिया का जो है यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट होना, दैट इज़ दी अमाइनो एसिड, इसको ही बोला जाता है अमोनियम असिमिलेशन। डोंट गेट एनी लाइक कन्फ्यूजन और डोंट गेट एनी लाइक सॉर्ट ऑफ मिसकंसेप्ट्स की अमोनियम असिमिलेशन मतलब क्या। तो बस अमोनिया का कन्वर्जन अमाइनो एसिड में होना इज नथिंग बट दी अमोनियम असिमिलेशन, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपको ये रखना है याद कि पहले नाइट्राइट जो होते हैं उनका कन्वर्जन अमोनिया में हो जाएगा और यूजिंग द रेडॉक्टेज एंजाइम, और उसके बाद जो है अमोनिया का असिमिलेशन होगा इनटू द अमाइनो एसिड, ठीक है। अमोनिया का असिमिलेशन होने के लिए देयर इज सम काइंड ऑफ दी पाथवे जो जनरली यूज़ किया जाता है बाय दी प्लांट्स, ठीक है। अब वो कौन सा पाथवे है और वो कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो जनरली जो अमोनिया का असिमिलेशन होता है ना, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल लगता है या जो भी सबस्ट्रेट्स लगते हैं वो आते कहाँ से है, तो वो आते हैं जो हमारे सेल्स में होती है इंपॉर्टेंट साइकिल, दैट इज़ द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल से जो ऑक्सैलो एसिटेट है, अल्फा केटोग्लूटारेट है, आपको अगर याद होगा वो साइकिल का, तो जो वो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर वो सबस्ट्रेट होते हैं वो यहाँ पे भी यूज़ होते हैं। तो उनकी ही मदद से जो ये पूरा अमोनिया है उसको अच्छे से यूज़ करके उन पे कुछ एडिशन वैडिशन करके अच्छे से अमाइनो एसिड या फिर अच्छी सी चीज़ें बनाई जाती जिससे बॉडी को हार्म भी ना हो प्लांट्स को और उसका अच्छे से यूज़ भी हो जाए नाइट्रोजन का, ठीक है। तो यही सब चीज़ें हम देखेंगे इस पूरे पॉइंट में। तो जो अमोनिया होता है, ठीक है, उसको एज इन यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए जो पाथवे यूज़ किया जाता है वो है GS GOGAT पाथवे। अब आपको कि कौन सा अजीब सा पाथवे है, तो उसका मीनिंग है ग्लूटामेट सिंथेटेज एंड ग्लूटामाइन ऑक्सैलोग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज। थोड़ा सा टफ नेम है लेकिन बहुत अच्छा और सिंपल पाथवे, डोंट गेट वरीड कि ये क्या है, बहुत सिंपल सा पाथवे है। नाम याद रखो आप, ग्लूटामेट सिंथेटेज एंड ग्लूटामाइन ऑक्सैलोग्लूटारेट अमाइनो ट्रांसफरेज। इनका एक ही एम है कि ये कैसे भी करके ग्लूटामाइन या तो फिर ग्लूटामेट बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या, तो ये जो दो चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, ग्लूटामेट सिंथेटेज एंड GOGAT, ये दो चीज़ों का यहाँ पे स्टेप्स यूज़ होते हैं और इसलिए इस पाथवे को बोला जाता है ग्लूटामेट सिंथेटेज एंड GOGAT पाथवे, ठीक है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया अमोनिया जो होता है टॉक्सिक होता है, इनहिबिट करता है डाइनाइट्रोजनेज को, एंड दैट्स वाई एनर्जी मेटाबॉलिज्म में भी इंटरफेयर करता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी भी लग जाती है, एज वेल एज वो टॉक्सिक होने के वजह से थोड़े से प्लांट के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम देता है, वो हमने देख लिया। नाउ दिस पाथवे, ओके, ये जो पाथवे पूरा इसको बोला जाता है ग्लूटामाइन सिंथेटेज साइकिल, याद रखो आप ये चीज़, आई विल हाईलाइट इट, इसको बोला जाता है ग्लूटामाइन सिंथेटेज साइकिल, ओके। तो ये पाथवे का यूज़ करके अच्छे से असिमिलेशन किया जाता है अमोनियम का इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट दैट इज़ द ग्लूटामाइन। आप याद रखो ये बात, ग्लूटामाइन जो होता है, ये जो असिमिलेशन की होल प्रोसीजर है उसका मेन मुद्दा यही है कि ये ग्लूटामाइन फॉर्म करता है, ठीक है। अब ग्लूटामाइन कहाँ से फॉर्म होता है, तो वो अमोनियम से फॉर्म होता है यूजिंग अ पाथवे और अ साइकिल नोन एज ग्लूटामाइन सिंथेटेज साइकिल। याद रखो ग्लूटामाइन सिंथेटेज साइकिल की मदद से असिमिलेशन होता है, और किसका असिमिलेशन होता है, अमोनिया का होता है। अमोनिया का कन्वर्जन किस में होता है, इनटू दी ग्लूटामिन, ओके, याद रखो आप। अब आपको होगी कि ग्लूटामिन अपने आप में एक नया अमीनो एसिड है, तो इससे क्या यूज़ हो सकता है, इससे कैसे कुछ बन सकता है, तो यस ये एक अमीनो एसिड, लेकिन ये प्राइमरी अमीनो एसिड है, मेन अमीनो एसिड नहीं है। प्राइमरी अमीनो एसिड एज अ प्रिकर्सर यूज़ किए जाते हैं जिससे बहुत सारे अमीनो एसिड और बनते हैं, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज कि ग्लूटामाइन बना मतलब बन गया अमीनो एसिड, ऐसा नहीं है, वो एक प्रिकर्सर है जिससे और ज़्यादा अमीनो एसिड बनते हैं, ठीक है। तो ये होने के लिए ग्लूटामाइन बनना ज़रूरी है। ग्लूटामाइन बनाया कैसे जाता है, तो वो अमोनिया से बनाया जाता है। अमोनिया से कैसे बनाया जाता है, तो यूजिंग द ग्लूटामाइन सिंथेटेज साइकिल, ठीक है, हो गई क्लियर बात। अब जो पाथवे है यहाँ पे वो है GS GOGAT पाथवे। नाउ GS GOGAT पाथवे जो होता है वो दो
एंजाइम्स की मदद से और 2 स्टेप्स की मदद से होता है, ठीक है। पहला जो है वो है जीएस, दैट इज़ द ग्लूटामाइन सिंथेसिस, ठीक है। ग्लूटामाइन सिंथेसिस, अब इसके नाम में इसका आंसर है ग्लूटामाइन सिंथेसिस, मतलब यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो है ग्लूटामाइन, ओके। नाउ यहाँ पे होता क्या है, सिंपल सी स्टेप है। जो ग्लूटामेट होता है, ठीक है, ग्लूटामेट जो होता है जो प्लांट्स में ऑलरेडी होता है, ग्लूटामेट जो होता है वो अमोनिया से रिएक्ट करेगा यूजिंग सम एटीपीज एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामाइन, ठीक है। मतलब ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बनेगा, इतना ही पहला स्टेप है। ग्लूटामेट सिंथेसिस, ग्लूटामाइन सिंथेसिस से क्या होगा, ग्लूटामाइन बनेगा। ग्लूटामाइन बनेगा मतलब कहाँ से बनेगा, ग्लूटामेट से बनेगा। ग्लूटामेट बनने के लिए ग्लूटामाइन बनने के लिए ग्लूटामेट क्या करेगा, रिएक्ट्स द अमोनिया यूजिंग द एटीपीज, इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूटामाइन, दैट्स इट। सेकंड स्टेप में क्या होता है, तो ओके आई विल इरेज दिस वन। सेकंड स्टेप में होता ये है कि ग्लूटामेट सिंथेसिस, अब यहाँ पे होगा क्या, ऑब्वियसली ग्लूटामेट सिंथेसिस नाम है तो सिंथेसिस किसका होगा, ग्लूटामेट का होगा। अब आपको ये पहले भी हुआ है, ग्लूटामेट को यूज़ किया जाता है और फिर ग्लूटामाइन बनाया जाता है, अब फिर से ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट क्यों बनाया जाता है, तो ग्लूटामेट इसलिए बनाया जाता है ताकि उससे आगे जाके फिर से ग्लूटामाइन, बहुत सारे ग्लूटामाइन बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या कि अब ग्लूटामेट एक प्रिकर्सर है ग्लूटामाइन बनाने के लिए, तो इसलिए ग्लूटामाइन जो है उससे और ग्लूटामेट बनाओ, उससे फिर और ग्लूटामाइन बनाओ, यही एक साइकिल चलती रहती है। तो यहाँ पे होता क्या है, गोगैट के मदद से ग्लूटामेट होता है सिंथेसाइज, ओके। मतलब यहाँ पे एंजाइम कौन सी है, ग्लूटामेट सिंथेसिस। वो क्या करता है, ग्लूटामाइन लेता है जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में वो एक ग्लूटामाइन लेगा, उसको ऑक्सैलोग्लूटारेट आपको पता है कहाँ से आएगा, वो आएगा क्रेब्स साइकिल से, उससे कंबाइन होके यूजिंग द NADPH एज द रिडक्टिव एजेंट, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द 2 ग्लूटामेट, मतलब ग्लूटामाइन से फिर से कौन बनेगा, ग्लूटामेट, ठीक है। अगेन ये 2 चीज़ों का यूज़ करता है, एक तो वो NADH का रिडक्टिव एजेंट के फॉर्म में यूज़ करेगा, या तो उसको और एक ऑप्शन है पिरिडॉक्सिन, उसकी मदद से वो हाइड्रोजन ले सकता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिडक्शन। अब आपको चीज़ें कौन सी याद रखनी है, तो 2 स्टेप्स में होती है। पहले तो ये GS गोगैट, ओके। GS स्टेप में होता है ग्लूटामाइन सिंथेसिस और गोगैट में होता है ग्लूटामेट सिंथेसिस, ठीक है। 2 आप चीज़ें याद रखोगे। ग्लूटामाइन सिंथेसिस में क्या होगा, ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बनेगा, और दूसरे स्टेप में अगेन ग्लूटामाइन से ग्लूटामेट फिर से बनेगा, ठीक है। यही आपको चीज़ याद रखनी है। सो हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, थोड़ा सा हम बायोकेमिस्ट्री के फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, जो हमारे ग्लूटामेट थे वो यूजिंग द ग्लूटामाइन सिंथेसिस क्या करेंगे, अमोनिया का यूज़ करके इस पे NH2 ग्रुप ऐड करेंगे यहाँ पे, और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूटामाइन, ठीक है। अब ये ग्लूटामाइन जाके कंबाइन करेगा ऑक्सैलोग्लूटारेट से, जो पहली स्टेप ये हुई। दूसरी स्टेप में ये ऑक्सैलोग्लूटारेट से जाके कंबाइन करके उस पर जो अमोनिया ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे और एक अमोनिया का एडिशन होगा, और यहाँ पे इस वाले में भी अमोनिया लग जाएगा, और इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 2 ग्लूटामेट फ्रॉम दी 1 ग्लूटामाइन, मतलब और 2 ग्लूटामेट बनेंगे, और वो 2 ग्लूटामेट से और ज़्यादा ग्लूटामाइन बनेंगे, यही साइकिल चलता रहेगा। ग्लूटामाइन क्यों बनाने हैं, क्योंकि वो प्रिकर्सर है अमाइनो एसिड्स के, उन ग्लूटामाइन से और ज़्यादा अमाइनो एसिड बनने वाले इन फ्यूचर। इसके अलावा एक और एंजाइम यहाँ पे यूज़ होती है, अगर ये दोनों पाथवे या ये दोनों स्टेप इनको नहीं करनी है तो वो एक और स्टेप करती है, हमारे जो प्लांट्स है वो एक और स्टेप करते हैं, दैट इज़ दी यूजेज ऑफ दी न्यू एंजाइम, दैट इज़ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। जैसे यहाँ पे हमने 2 ऑक्सैलोग्लूटारेट का यूज़ किया, वहाँ पे जो है द प्लांट्स यूज़ दी अल्फा केटोग्लूटारेट, ठीक है। वेट अ मिनट, आई विल शो यू। तो वहाँ पे होता क्या है, तीसरे स्टेप में अल्फा केटोग्लूटारेट यूज़ होता है। आपको पता है अल्फा केटोग्लूटारेट कहाँ से आता है, अल्फा केटोग्लूटारेट आता है फ्रॉम द क्रेब्स साइकिल। उस अल्फा केटोग्लूटारेट के साथ जो है अमोनिया रिएक्ट करेगा, ठीक है, यूजिंग द एंजाइम ग्लूटामाइन डिहाइड्रोजिनेज, ओके, यूजिंग द एंजाइम ऑफ द वन मोर ग्लूटामेट, ठीक है, जो हमने पहले भी देखा
ओके, सेकंड स्टेप में भी ग्लूटामेट फॉर्म होता है और थर्ड स्टेप में भी वही होता है। मतलब अगर उनको यहाँ पे चेंज यही होता है कि जो गोगैट है उसकी जगह पे दूसरा पाथवे यूज़ किया जाता है यूजिंग दी डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ओके, ग्लूटामाइन डीहाइड्रोजिनेज, सॉरी ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज में होता यही है कि बस ऑक्सैलो एसीटेट की जगह पे अल्फा केटोग्लूटरेट यहाँ पे यूज़ करो और उसको कन्वर्ट करो इनटू दी एल-ग्लूटामेट। बाकी प्रोडक्ट सेम ही है, बस यहाँ पे जो है अल्फा केटोग्लूटरेट और एंजाइम थोड़ी सी अलग है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। ओके, और ग्लूटामेट सिंथेटेज, बस यही डिफरेंस है। तो ये है पाथवे फॉर द असिमिलेशन ऑफ द अमाइनो एसिड। ओके, फॉर द असिमिलेशन ऑफ अमोनिया, सॉरी असिमिलेशन ऑफ अमोनिया होने के लिए आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि अमोनिया का जो है वो कन्वर्जन करना है हमें अमाइनो एसिड में। अब अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करने के लिए उसके लिए उसको प्रिकर्सर बनाना पड़ेगा जो अमाइनो एसिड में जाके फॉर्म होगा आगे, ठीक है। तो वो प्रिकर्सर बनाने के लिए एंजाइम्स लगती है। तो पहली चीज़ तो ये कि एक पाथवे है जीएस गोगैट पाथवे। जीएस गोगैट पाथवे में जो जीएस स्टेप है उसमें लगती है ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ग्लूटामाइन सिंथेसिस मतलब क्या, ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बनना, ठीक है। पहले स्टेप में ये होता है। दूसरे स्टेप में उस ग्लूटामाइन से क्या किया जाता है, ग्लूटामेट फिर से बनाया जाता है यूजिंग द एंजाइम ग्लूटामेट सिंथेटेज, ठीक है। अगर ये सेकंड स्टेप इनको ये वाली यूज़ नहीं करनी है तो प्लांट दूसरी वाली स्टेप यूज़ करते हैं। उसमें क्या करते हैं, तो ग्लूटामेट सिंथेटेज की जगह ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम यूज़ करते हैं। ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, वो उस ऑक्सैलो एसीटेट की जगह पे अल्फा केटोग्लूटरेट यूज़ करेगा एज द सबस्ट्रेट, ठीक है, और उसको अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाएगा ग्लूटामेट। एंड प्रोडक्ट दोनों का सेम है, बस जो एंजाइम है वो अलग है और सबस्ट्रेट है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको याद रखनी, ग्लूटामेट सिंथेटेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, ये तीनों एंजाइम बहुत काम की चीज़ है फॉर द कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया इनटू द प्राइमरी अमाइनो एसिड। एंड दैट्स अबाउट इट, यही होता है इन द असिमिलेशन ऑफ द अमोनियम। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। अगर आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट विथ मी। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप यू अंडरस्टूड माई लेक्चर।